बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, जो ये टेक्स्ट बुक है, इसका यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है पैट्रियाटिज़म, यानी वतन से मोहब्बत करने वाला मुहिब वतन। इसके लिए आपने बेटा पेज नंबर जो ओपन करना है, पेज नंबर 13, पैट्रियाटिज़म यूनिट नंबर 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, देन इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में आपको अवेयरनेस दी जाएगी, देन लास्टली इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ दोबारा इंग्लिश रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है पेज नंबर है 13, यूनिट नंबर 2, पैट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means a countryman. It is considered a commendable quality. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and the honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Passage number 3 है, Qaid Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Passage number 4 है, passage number 4, the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Sarwar Muhammad Hussain, Lance Naik Muhammad Mahfouz, Captain Colonel Sherhan and Havaldar Lalik Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. All of them were awarded Nishan-e-Haider. All of them were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पैसेज नंबर है 5 और पेज नंबर है 14। Patriotism therefore is not just a quality feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In the words of S.W. Scott, a man devoid of a patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with the soul so dead, who never to himself hath and said, this is my own my native land, my own my native land. तो बेटा अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में आपको बताएंगे। क्लास है बेटा हमारी 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 2, टॉपिक है हमारा पैट्रियोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। पैसेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के वर्ड्स मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग में जो सबसे पहले डिवोशन वफादारी, डिवोशन वफादारी, लेटिन लतीनी ज़बान, सेक्रीफाइस कुर्बानी, सेक्रीफाइस कुर्बानी, स्ट्रेंथ ताकत या कुव्वत। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा
ताकत या कुव्वत। स्ट्रेंथ का मानी ताकत या कुव्वत। ऑनर नेकनामी, रेंडर पेश करना, रेंडर पेश करना। कंट्रीमैन हमवतन, प्रोटेक्ट हिफाजत करना। होमलैंड वतन, होमलैंड वतन। अलर्ट चौकस या चौकन्ना, अलर्ट चौकस या चौकन्ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अलर्ट चौकस या चौकन्ना। स्पिरिट जज्बा, डिफेंस दिफा, एम्ब्रेस गले लगाना, अवार्ड नवाजना, अवार्ड नवाजना। सुप्रीम का मानी होता है आला तरीन, सुप्रीम आला तरीन। वर्ड स्पिनिंग के बाद हम इसकी उर्दू रीडिंग उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म। इसकी पेज नंबर जो पेज नंबर 13 है। पैसेज नंबर 1, 2 और 3 की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं। Patriotic means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बे वतन के मानी मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफादारी की हैं। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. मुहिब वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota. patriot का लफ्ज़ लतीनी ज़बान के लफ्ज़ patriota के लफ्ज़ से महूज़ है। It is considered a commendable quality. ये काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। पैसेज नंबर 2 है। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। For a patriotic, the sovereignty, integrity and honor of the country are the supreme values on which no compromise can be made. एक मुहिब वतन के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, वहदत और वक़ार बरतर जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहब्बान वतन इन इक़्तिदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत करने के लिए कुर्बानी देते हैं। पैसेज नंबर 3 है। कायद मोहम्मद अली जिन्नाह was a nation builder and a great patriot. कायद मोहम्मद अली जिन्नाह एक ममार कौम और एक अजीम मुहिब वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफ़त और रवायत की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्हें शिनाख्त का एहसास अता किया। He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. आपने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहद और ताकतवर कौम बनने के लिए उबारती है। इसके बाद पैसेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 4 है। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. गैर मुल्की हमला के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें चौकन्ना या चौकस रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें ऐसी हैं व्हेन पीपल ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियां वतन की दफा
वतन के दफा के लिए कुर्बान की। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1965, 71 और कारगिल की जंगों में मैनी ब्रेव सोल्जर्स गिव देयर लाइव्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी जिंदगियों का नजराना दिया इन एन अटेम्प्ट, एक कोशिश में टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, ताकि वतन की हिफाजत की जाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सरवर मोहम्मद हुसैन, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेरहान एंड हवलदार लालिक जान ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। इन तमाम शख्सियात ने जाम शहादत नोश किया अपने वतन की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक अवार्ड, जो कि सबसे आला फौजी एजाज है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियाट्स, जो कि अजीम मुहब्बान वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान की। लास्ट पैसेज है इसका, यूनिट नंबर 2 पैट्रियाटिज्म हुब्ब वतन, पेज नंबर 14 है। पैट्रियाटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। मुहिब वतन जो है, हुब्ब वतन जो है, वो एक एहसास ही नहीं है। इट इज अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। इसलिए हुब्ब वतन महज एक एहसास ही नहीं है, ये एक जिंदा जोश व वलवला है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के जो अल्फाज हैं, अ मैन डिवोर्ड ऑफ पैट्रियाटिक स्पिरिट, एक बंदा जो कि हुब्ब वतनी के जज्बे से आरी होता है, इज लाइक द वन हु, वो एक ऐसे इंसान की तरह होता है, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ ही सेड दिस इज माय ओन माय नेटिव लैंड। इस आदमी की तरह होता है जो सांस तो लेता है, लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी होती है कि उसने खुद से कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा वतन है, ये मेरी अर्ज़े पाक है। ये बेटा इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास है बेटा हमारी 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 2, टॉपिक है पैट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी यानी वतन से प्यार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जे सवालत की जवाब दीजिए। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बोर्ड के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 10 मार्क्स के आएंगे। उसमें क्या है कि आपको 8 क्वेश्चन टोटल आएंगे, उसमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करने हैं और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 10 मार्क्स के आएंगे। सो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियाटिज्म, आप मुहिब वतनी को किस तरह बयान करेंगे। पैट्रियाटिज्म इज डिफाइंड एज दस, हुब्ब वतन को इस तरह बयान करेंगे कि हुब्ब वतन की तारीफ यूं की जाती है, लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। इसके मानी मादे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स से मुल्क के वफादारी के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट, एक मुहिब वतन की क्या खूबियाँ होती हैं। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर इट व्हेन द नीड अराइजेज। एक मुहिब वतन मुल्क से मोहब्बत करता है, जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है तो इसके लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टूवर्ड्स योर कंट्री। पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से आपके अपने मुल्क के लिए कौन से फ़राइज़ हैं। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू माई कंट्री इज़ लॉयल्टी टू इट, मेरा पहला और अव्वलिन जो फ़र्ज़ है वो इससे वफादारी के हैं।
आई शुड ऑलवेज बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, मैं हमेशा तैयार रहूँगा अपनी ज़िंदगी का नजराना देने के लिए, फॉर द फ्रीडम एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री, अपने वतन की आज़ादी और आज़ाज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 पैट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। गैर मुल्की हमले के नतीजे में कौन सी चीज़ हमें चौकन्ना रखती है? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज्म, ये हुब्बुल वतनी का जज्बा है, दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, जो कि गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना या चौकस रखता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू डिफाइन कायदिज़्म क्वेट, आप किस तरह कायदिज़्म के मकूले को बयान करेंगे? वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियाटिज्म, हमें ज़रूर अपने अंदर एक हुब्बुल वतनी की हिस्स पैदा करनी चाहिए, विच गैल्वनाइज अस, जो हमें जोड़ती है, ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो कि हमें एक मजबूत और मुत्तहद कौम बनाती है। तो इस बेटा इसका आंसर होगा, इफ़ वी डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियाटिज्म, अगर हम अपने अंदर हुब्बुल वतनी की एक हिस्स पैदा करते हैं, वी शैल नॉट फॉल प्रे टू डिसयूनिटी, तो हम बदनवानी का शिकार नहीं होते, इंतशार का शिकार नहीं होते, डिसहार्मनी गैर हम हंगी का शिकार नहीं होते, एंड प्रोवेंशलिज्म और सुबाहियत का शिकार नहीं होते। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है हमें वो मुत्तहद और मजबूत रखता है। बेटा ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलते हैं। यूनिट नंबर 2 पैट्रियाटिज्म, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में इसका बी पार्ट है, पेज नंबर 19 पे इसका बी पार्ट है बेटा एक्सरसाइज में। Identify the kinds of the following sentences: exclamatory, assertive, interrogative, negative, imperative। शनाख्त करनी है कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं। एक्सक्लामेटरी का मानी होता है इस्तिजाबिया, असर्टिव का मानी होता है सिंपल यानी सादा, इंट्रोगेटिव का मानी होता है सवालिया, नेगेटिव का मानी होता है मनफी, इम्पेरेटिव का मानी होता है इंशाइया। तो हमने बताना है कि ये सेंटेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, यानी फ़न यानी अदब एक दूसरा मजमून है जिसमें मैं ख़ास तौर पर बड़ी दिलचस्पी लेता हूँ। ये फ़िक्रा असर्टिव है, ये क्योंकि सादा है, सिंपल सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये किस कदर खूबसूरत तस्वीर है। तो ये एक्सक्लेमेटरी है, ये देखिए इसके नीचे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो इस वजह से एक्सक्लेमेटरी है। टीच हिम टू लर्न, उसे याद करने के लिए पढ़ाओ, तो ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव की बेटा पहचान ये होती है, ये वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे कि टीच होता है पढ़ाना, टॉट टॉट इसकी दूसरी फॉर्म टॉट है, तीसरी फॉर्म भी टॉट है, तो लिहाजा ये इम्पेरेटिव है। नंबर 4 पे चलते हैं। हाउ वुड आई नो, मैं किस तरह जानूंगा, तो ये फिक्रा क्वेश्चन मार्क वाला है तो ये इंट्रोगेटिव होगा। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लास्ट में, तो ये इंट्रोगेटिव है। और शी डिड नॉट, नंबर 5 है, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो गलत बयान नहीं, उसने गलत बयान ना दिया। तो ये देखिए इसके अंदर नॉट आ गया, जिसके अंदर नॉट आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। इस वजह से नंबर 1 जो है वो असर्टिव है, नंबर 2 जो है एक्सक्लामेटरी है, नंबर 3 पे जो है वो इम्पेरेटिव है, नंबर 4 पे जो है वो इंट्रोगेटिव है और नंबर 5 पे जो है वो नेगेटिव है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।